Here, this is Wahid from Shaheen Academy. Now, again, we are going to learn some maths in online mode. Actually, the main thing is that we have to discuss about maths 2A because most of the students are fail in this IP 2023. So some persons who are going to arrange these classes for the sake of student better. So today, first we have to discuss about the chapters which are going to be learned in a short period. Because if you are going to focus only on 7 marks questions, it is more than better because can't say anything like how many days this class is going to be continue. So 7 mark questions, 4 mark questions, and 2 mark questions. Actually, if you want to pass, at least you have to complete De Moivre's theorem. Actually, we are discussing about maths 2A. Maths 2A, we are going to deal in this one. The second chapter of this textbook is De Moivre's theorem, and the fourth chapter is theory of equation. It gives you 7 mark one question. It gives you 7 mark one question. Next, question number 6, binomial theorem. It gives you 7 mark two questions. Right. And the next one is 7th, 8th chapter, measures of dispersion. M stands for measures of dispersion. Will give you 7 mark one question. While as probability, chapter number 9, probability will give you again one question of 7 marks. And 10th question, random variable, again gives you one question in your paper. So total questions are 7. 7 question. Out of 7, we have to write only 5 question. Now it's depend on you which chapter is going to be learn or make it practice. So first of all, De Moivre's theorem is most important question, and questions which are frequently asked, same question is repeating in the examination. Theory of equation is somewhat difficult, but the students who has a basic foundation is good, he or she can solve easily. Next, in binomial theorem, one question that is belongs to series, which has a exercise 6B in our textbook. Exercise 6B questions are there. Series wale problem, some of the series wale problem wo dekh lena bete. Next, measure of dispersion, it is based on your statistic, probability and random. First of all, De Moivre. Second, this one. Third, only one question we are going to attempt in this one, which is most easy in the short period of this supplementary. So we can just focusing on series wale problem. Then measure of dispersion, you can skip it. Probability and random. These are all most important questions. First of all, we are going to deal this chapter. Next, second one is this. Next, third, in this one, only one topic we are going to deal. And measure of dispersion, we don't want to study. Fourth question belongs to your probability, and the fifth question belongs to your random variable. After getting of these knowledge, first we have to think to score at least 35 marks. Sir, 28 से पास है ना? Yes, we know that 28 से पास है, लेकिन इतने भी तो परफेक्ट नहीं है कि 28 को 28 पूरे आपको आ जाए. तो हम पे 35 के बारे में सोचेंगे. If you are going to score 35 in an easy way, so it is more than enough. Now, 4 mark questions, complex number is most convenient, and quadratic equation. Next one, P and C, 2 questions will be there. P and C, 2 questions will be there. And the next one is partial fraction. Next, probability of 2 questions. Here it's one, it gives you one,
1 1 1. Again in this 7 question, we have to attempt 5. So 5 sevens are 35, 5 fours are 20. At least we can learn 55 marks of weightage in this short period. So just focusing on 7 marks and 4 marks chapter. अच्छा सर, इसमें कौन से वाले चैप्टर पे फोकस करना होगा? अब ये क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के आ जाता बेटे। तो इसमें देखिए आपके पास ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये आप इजीली पढ़ ले सकते हैं इसको। सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन कर लीजिए आप, बाकी के साथ 8 क्वेश्चन पूरे सिमिलर है। सो विच इज मोर इजी टू यू। पीएनसी 1 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एज अ रैंक, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, वो वाला क्वेश्चन है। दूसरे वाले को आप स्किप कर दो, वो भी इजी आता, लेकिन प्रोबेबिलिटी के 2 आसान इंशाल्लाह आ गए तो ठीक है, वरना इसको देख लेना बेटे। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 6 लेकर जाएंगे, एक हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील द चैप्टर नंबर 2 which is de Moivre's theorem of mass 2a. So let's start. If anybody wants to know and anybody wants to write, just make a screenshot it. We are not going to give you extra time to copy it, okay? Screenshot ले लो बेटे। चलो बस हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, समझ जाइए। अब चैप्टर पहले हम डी मोइवर्स के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली डी मोइवर्स थ्योरम है क्या? डी मोइवर्स थ्योरम एक्चुअली है क्या, ये इसके बारे में पहले थोड़ा सा सुन लीजिए आप। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा से a प्लस आई बी, a प्लस आई बी is our complex number. This is our complex number. जिस तरह से number of numbers are there in a real number, a part of that it is also a real number. ये भी एक पार्ट ही है रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा आपके पास ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर्स है, और रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, ये जितने नंबर्स आते हैं आपके पास p बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर्स है, इरेशनल उसी को बोलेंगे आप, डेसिमल्स है, इंटीजर्स है, वो नंबर के साथ साथ एक और एक नंबर भी है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने का था, उसकी थोड़ी सी नॉलेज के थ्रू हम सेकंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है हमारे पास, इसके अंदर मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालना है। ए और बी जो भी मैं लिखा था वो दोनों आपके रियल नंबर्स हैं, और आई बी जब आ जाएगा तो वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2A, फर्स्ट बिट फर्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पूरा कवर हो रहा है सब। एक्सरसाइज 2A, first bit first question. If n is a integer, if small n is an integer, then show that 1 plus I whole power 2n plus 1 minus I whole power 2n is equals to 2 power n plus 1 into cos of n pi by 2. एक्चुअली डी मोइवर्स थ्योरम है क्या? एक्चुअली डी मोइवर्स थ्योरम है क्या? डी मोइवर्स थ्योरम आपका जिस तरह से हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ba माइनस बी होल स्क्वायर, वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली फॉर ए माइनस बी होल क्यूब के लिए भी हमारे पास कुछ एक्सपेंशन है, ए प्लस बी होल क्यूब के लिए भी कुछ एक्सपेंशन है। लेकिन डी मोइवर्स थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में ये सिखाता कि आप किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लें। So here, as we all know that a plus b whole square formula is a square plus
बी स्क्वायर प्लस 2ab, a minus b square formula is a square plus b square minus 2ab. So in this complex number, if the power is square or cube or any other indices will be there, so directly we can make it in the form of complex amplitude form और पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलिए आप। वो फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के बाद आप डायरेक्ट वो पावर को, वो इंडिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंगल से। ठीक है, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा, आपको समझ में आया था। फर्स्ट सॉल्यूशन कंसीडर करिए, कंसीडर 1 प्लस आई पावर एन, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है बेटे? वी आर जस्ट यूजिंग अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ check whether r value of this one is x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x का कोएफिशिएंट x के प्लेस पे क्या है? 1 है, 1 लिख लिए स्क्वायर के साथ, प्लस i is a imaginary part, there will be a 1 which belongs to y, again we have y value is also 1, so r is equals to root 1 plus root 1 root 2. Here we have to multiply root 2 and divide root 2 to this part 1 plus I. ये 1 प्लस आई जो था हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड रूट 2 कर लिया। कभी कोई क्वेश्चन में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/2, कभी किसी में रूट 3/√3 आता, तब वो जो भी आएगा वो हमारे आर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आर पर डिपेंड करेगा। 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू, बाहर वाला रूट 2 वैसे ही रख लो, इसको दोनों डिनोमिनेटर भिजाओ बेटे, 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। 1 plus I is equals to 2 power 1/2, 2 power 1/2, 1/√2 in terms of cos, cos में 1/√2 क्या होने वाला है? cos pi/4 होने वाला है, प्लस I sin pi/4। So now we have the value, we have a complex amplitude form बोलिए आप इसको, या amplitude form बोलिए या पोलर फॉर्म बोलिए। आ गया, क्या आ गया? 1 प्लस आई की वैल्यू 2 पावर 1/2, आप इसको SIS 6 pi/4 भी लिख सकते, 6 pi/4 भी आप इसको लिख सकते। cos प्लस आई साइन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम 6 भी लिख सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू टेक द पावर एज 2 पावर n ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ 1 प्लस आई होल पावर 2n, the value of 1 plus I we have to take as 2 power 1/2 6 pi/4 whole power 2n. 1 plus I whole power 2n is equals to 1 plus I whole power 2n is equals to 2 power, ये पावर को इससे मल्टीप्लाई करो बेटे, 1 into 2 power n, 2 power n/2 6 2n pi/4। क्या बताया मैं आपको? इसके साथ ये पावर ले लिए। अब आप सोच में बैठ जाते हैं, सर यहाँ पर पावर था तो आप पावर पे रखे, और यहाँ पर पावर है इसको लाके पावर क्यों न लिखे? ऐसा क्यों नहीं लिखे? cos पावर 2n pi/4 ऐसा क्यों न लिखे? sin पावर 2n pi/4 ऐसा क्यों न लिखे? बेटे यही है आपका डी मोइवस थ्योरम, cos प्लस आई साइन है ये, सिस जो है cos प्लस आई साइन, जब भी cos प्लस आई साइन आ जाएगा एट दैट टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई द इंडिसेस टू द एंगल ओनली। तो हमने एंगल से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1s 2 2s, here 2 2 will get cancel, 2 2 will get cancel, 1 plus I whole power 2n is 2 power n 6 n pi/2 आ गया। अब अभी क्या करना है? अभी तो हमने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया था, उसका आंसर लेकर आया है। अब इसको लीजिए
और इसके आंसर को भी सॉल्व कर लीजिए। लेकिन डी मोइवर्स आपको शॉर्टकट सिखाता है, बहुत प्यारा शॉर्टकट। देखो भाई हमारे पास 1 प्लस आई कॉस पावर 2n है, तो हमने उसको वैसे ही लिख लिया 1 प्लस आई होल पावर 2n इज इक्वल्स टू 2 पावर n कॉस n पाई बाई 2, कॉस हो गया ये, प्लस I sin n pi by 2. Here we can write cis as cos plus I sin. Right. Similarly, we can write 1 minus I 2 power n. 1 minus I whole power 2n. So 2 power n as it is लिखेंगे cos n pi by 2 प्लस की जगह पर हमारे पास माइनस दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ही माइनस लगाएंगे I sin n pi by 2. Now, what they ask you to find out first, we have to add these two answers. This answer is this one, and this answer is this one. Now we have to add these two. Now, 1 plus I whole power 2n plus 1 minus I whole power 2n. इसका आंसर ये पूरा है 2 power n into cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 plus again this one 2 power n cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4 नहीं आना है, 2 आना है शायद, राइट? हाँ 2 ही आना है, सब जगह 2 2 2 2 है तो 2 आएगा। What we have to do here? Simple, आसान मेथड बेटे। 2 पावर n कॉमन दिख रहा साहब, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया है हमने। cos n pi by 2 प्लस I sin n pi by 2 प्लस 2 पावर n बाहर चले गया, जी हाँ चले गया, cos n pi by 2 माइनस I sin n pi by 2, ये प्लस ने माइनस को काट दिया, तो I sin n pi by 2 minus I sin n pi by 2 चले गए अपनी जगह। 2 power n as it is, 1 cos plus 1 cos. Here we have 2 cos n pi by 2. Now we have 2 power n into 2 power 1 cos n pi by 2. Bases are same. Yes, as we all know that the rhyming word is as bases are same, power should be added. 2 power n plus 1 cos of n pi by 2, hence proved what we have to show here. This is the most important problem, और इसी के ऐसा एक और एक साथ ही है इसका, जहां पर जस्ट छोटा सा एक हमको चेंजेस करना है, वो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है बेटे, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम कॉपी कराएं और प्रॉब्लम भी ज्यादा से ज्यादा कवर कराएं। सो मेक अ स्क्रीनशॉट, आई जस्ट गिव यू 1 2 3 एक्शन। हो गया स्क्रीनशॉट, खलास। चलो बस आगे आ जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा जल्दी 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 लिख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्मॉल n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, प्रॉब्लम नंबर 1। if n is an integer, then show that 1 plus I whole power n, 1 plus I whole power n, 1 minus I whole power n is equals to 2 power n plus 2 by 2. Here I am using blue pen to differentiate the last one and the new one. Cos of n pi by 4, right? फिर से बेटे कंसिडर करिए आप, 1 प्लस आई लिख लिया हमने, हाँ लिख लिया था, फिर उसके बाद में x का कोएफिशिएंट 1 है और y के प्लेस पे 1 है, x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 1 1 है। अगेन हमने r निकाल लिया है, वो r निकालने के बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। ये पूरी कहानी तो सेम चलती आएगी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंज अगर करना है तो हमको यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ से 2 चले गया, यहाँ से भी 2 चला गया, तो बचा क्या बेटे, n बचा हुआ है, तो हमने n को ऐसे बना लिया। यहाँ पर भी देखिए आप 2 चले जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास अब n बाई 2, 2 पावर n बाई 2। यहाँ पर भी आपने सिर्फ n से मल्टीप्लाई किया है। जस्ट आई एम एडिटिंग द नंबर्स ताकि आपको ये प्रॉब्लम आसान लगे, वरना मैं फिर से रब करके लिखाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए।
बस आप ये देखिए कि आपको पढ़ना एक है, दूसरा आपको बम्पर ड्रॉ में आ जा रहा है, दूसरा वाला सिर्फ n पाई 2 सिस n पाई बाई 4, ये इसके पास एंगल से मल्टीप्लाई हो गया, 2 पावर 1 प्लस आई होल पावर n, 2 पावर n बाई 2 सिस पाई बाई 4। एक ही स्टेप दो बार हो जाता, तो एक काम करेंगे, एक और स्टेप हमारे लिए कम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आ जाओ बेटे, अब यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस आई होल पावर n, we can write it as whole power n, right? 2 power n by 2 लिख लीजिए यहाँ पर, 2 power n by 2 sis we can write sis cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4. Similarly for 1 minus I whole power n, 1 minus I whole power n, we can write same as 2 power n by 2 cos n pi by 4। यहाँ प्लस है तो हमने प्लस देखा था, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो माइनस के साथ ये लगा लिया हमने n sin pi by 4। दोनों को भी वो फिर से ऐड करने के लिए कहा है हमको, सो राइट, तो मेक अ एडिशन ऑफ दीज टू टर्म्स, 1 प्लस आई होल पावर n, 1 माइनस आई होल पावर n। इसका आंसर क्या था, यहाँ पर है, तो थोड़ा सा हम इसको और ब्लू लाइन इंक से लिख लेंगे ताकि हमको पता चले कि हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा लिया मैंने 4, यहाँ पर भी हमको 2 पावर n बाई 2, यहाँ पर लिख लो पाई बाई 4, यहाँ पर भी पाई बाई 4। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटे, 2 पावर n बाई 2, इसको थोड़ा सा 2 पावर n बाई 2। अब यहाँ पर जो भी टर्म अंदर बच गए थे वो हमने इधर लिख लिए हैं, सिर्फ बाई 4 के साथ। जो लास्ट स्टेप में कट किया था वो भी अभी भी कट कर रहे हैं हम, तो बच गया क्या हमारे पास, 1 प्लस 1 2 n पाई बाई 4, यहाँ पर n बाई 2 था, यहाँ पर भी n बाई 2 है, ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, खाली यहाँ 4 लिखना है। अब इस बार बेसिस ऑफ सेम पावर शुड बी एडेड में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर n बाई 2 प्लस 1 bases are same power should be added into cos n pi by 4। अब एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेते ये n प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा, cos n pi by 4 is your answer। This is what we have to show। Now it's your turn to just make a screenshot। I'm not going to give you time to copy it। ओवर बेटे, देखो एक प्रॉब्लम आपने पढ़ा था, आपको दूसरा वाला खुद ब खुद वैसे ही आ गया, अब आपको समझिए कि फ्री में आ गया, ठीक है। चलिए एक और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड देख लेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो वो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर कोई कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन चेंज कर लूँ। स्मॉल देन शो दैट, यहाँ तक तो पूरा सेम है बेटे, सिर्फ इसको उड़ा देना है। वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल्स टू, चलो बेटा हो गया शायद सबका। अभी मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन पूरा एक ही लाइन में कंप्लीट कर दूं, वरना आधा उधर आधा इधर लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। टू पावर n प्लस 1 cos पावर n थीटा बाई 2 cos n theta by 2। Question is here, 1 plus cos theta plus I sin theta whole power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power n is equals to 2 power n plus 1 cos power n theta by 2 cos into theta and theta by 2, right। फिर से वही है, स्मॉल एन पॉजिटिव इंटीजर है, सब छोड़ो यारो, सब बेकार है, काम है, काम किसका है अपने को, इसको इससे ऐड करना है। और यहाँ पर अगर सिर्फ 1 नहीं होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते,
cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो माइनस साइन ये प्लस साइन दोनों कैंसिल हो जाते, 1 + 1 2 cos n थीटा आंसर आ जाता, फिनिश्ड। लेकिन ये एक 1, देखो अगर सपोज ये 1 नहीं होता, जस्ट मैं अपना इमेजिनेशन बता रहा हूँ, 1 नहीं होता cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्यों? अभी हमने बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये जो पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म पे अगर आपके पास n आ जाए तो हम डायरेक्ट थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर भी cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, माइनस आई साइन एन थीटा प्लस आई साइन एन गेट कैंसिल, 2 cos n थीटा आ जाता आंसर, फिनिश हो जाते। 7 मार्क आसानी से हमको 2 स्टेप में खत्म हो जाते, लेकिन उन्हें 1 लगाकर आपको परेशान कर दिया और ये आंसर से ये आंसर पे पहुंचा दिया। हाउ दिस 1 वर्क? ठीक है, अब 1 को हटाने के लिए हमको क्या काम करना है वो देख लो पहले। सॉल्यूशन में इस बार हम गिवन लिखेंगे। क्या है हमारा गिवन? LHS। व्हाट इज LHS हियर? 1 + cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n प्लस 1 + cos theta minus I sin theta whole power n। As we all know that 1 + cos theta का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है भाई? सिंस 1 + cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अच्छा, तो 1 हटाने का आसान तरीका हमको मिल गया यहाँ पर। अब ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दीज टू टर्म्स? जस्ट अ माइनस साइन। तो 1 + cos थीटा हटाइए, क्या लिखने का है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई एज इट इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये होल पावर n लगा लिए, प्लस अगेन द सेम फॉर्म वी हैव टू यूज हियर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होल पावर n। अभी क्या करूं? 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लग रहा है तो बाहर ले लेंगे, 2 cos थीटा बाई 2 बाहर ला लिया मैं, तो बचा क्या? 2 चले गया, cos 2 थे, स्क्वायर का मतलब 2 थे, एक को हमने बाहर बिठाया है, एक को ब्रैकेट के अंदर बिठा दिया, प्लस ये 2 बाहर इंतजार कर रहा है, आई बच गया था, साइन यहाँ पर लिखेंगे, कॉस बाहर चले गया। अब आप सोचते हैं बेटे यहाँ से कॉस गया, यहाँ से कॉस गया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर का हुआ। ऐसा नहीं, ये दोनों में 2 कॉमन थे हम बाहर लाए, ये दोनों में कॉस कॉमन थे हम बाहर ले गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 cos इंटू कॉस 2 cos स्क्वेयर, 2 cos इंटू आई साइन 2 cos आई साइन, है या नहीं है? चलो कॉमन निकल गया। ये पावर n कहाँ लगाना था? होल ब्रैकेट लगा के ऊपर लगाना था। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर लो, 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर n। अब ये पावर n इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ये लिखो 2 पावर n cos पावर n थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर n। अरे वाह, क्या बात है, ये हमको आसानी से बता दिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डी मोइवर्स फॉर्म के हिसाब से हम डायरेक्ट एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 पावर n cos n थीटा बाई 2, ये भी हमारा सेम डी मोइवर्स फॉर्म में आ गया, cos थीटा आई साइन थीटा होल पावर n। दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको? 2 पावर n cos पावर n, 2 पावर n cos पावर n। उससे पहले एक और स्टेप ये कर लेंगे, थोड़ा इसको और एक्सपैंड कर लेंगे बेटे। क्या एक्सपैंड करना बाकी रह गया? 2 पावर n cos पावर n थीटा बाई 2 हमने बाहर ले लिया, यहां से और यहां से बचा कौन था हमारे पास? cos n थीटा बाई 2, ये n इसके पास मल्टीप्लाई हो गया और इसके पास भी मल्टीप्लाई हो गया, राइट, प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, ये तो बाहर वेट कर रहा है हमारा, इसको ला लो, cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, माइनस साइन प्लस साइन विल गेट कैंसल, बचा कौन हमारे लिए? अब 2 पावर n इंतजार कर रहा था बाहर, उसको ला लीजिए, और एक कॉस 2 कॉस 2 कॉस
n theta by 2, 2 power n into 2. न्यूमेरिकल एक तरफ आ गए, ये ट्रिग्नोमेट्री के टर्म एक तरफ ले लिया मैं. bases are same, power should be added. 2 power n plus 1 cos power n में है ये cos n theta by 2 के साथ है ये. Finish. This is what we have to prove here. चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now the next question is, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, then for any small n belongs to capital N, show that alpha power n plus beta power n will give you 2 power n plus 1 cos n pi by 3. ये क्वेश्चन कर लेंगे बेटे, क्लास को वाइंड अप कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे. यस, ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, अल्फा बीटा दो रूट्स है इक्वेशन. कौन से वाले इक्वेशन? इसके अंदर से आप जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसमें से दो रूट निकाल लीजिए, जिसका नाम है अल्फा और बीटा. तो आसानी से हम सोच सकते हैं कि भाई जब भी इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक का हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, दो मेथड है. वैसे तो कई मेथड है इसके फैक्टर्स निकालने के, लेकिन हम ज्यादातर फोकस करेंगे सिर्फ दो ही मेथड पे. एक कि ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, देख लो. दूसरा, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो व्हाट a हियर, a इज दिस वन, b वाले को हम ये ले लेंगे और ये हमारा c रहेगा, 4c रहेगा, b माइनस 2 रहेगा, a और 1 रहेगा. x इक्वल्स टू माइनस एज इट इज हमने लिख लिया है, b की प्लेस में माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, b की प्लेस से फिर से माइनस 2 लिखेंगे हम, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 16, माइनस 2 स्क्वायर पे प्लस बन जाएगा, 2 स्क्वायर गिव्स यू 4, माइनस का हमने माइनस सेम लिखा है, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2. ये 2 को ये 2 से डिवाइड कर देते बच्चे हमारे, ये 2 कैंसिल कर देते. कभी ऐसा नहीं करना बेटे, या ये 2 जब इससे कैंसिल हो रहा है तो ये 2 अभी बाकी रहेगा ये वाले टर्म के लिए भी. तो ये सोच लो आप कि पहले आपको पूरा कंप्लीट न्यूमरेटर सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है, उसके बाद कैंसिल करना. x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 12 बच गया डिवाइडेड बाई 2. x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस, जब भी हम रूट को बाहर लेकर आते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, माइनस जो होता है वो -1 कहलाएगा. तो -1 रूट में i इमेजिनरी का काम करेगा. ये 12 मैंने सेम लिख लिया डिवाइड बाई 2. x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस i हमने सेम लिखा है, 12 वी कैन राइट 4 3 जा, x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस i,
4 का रूट आएगा 2 और बचा रूट 3 सेम। अब सब में 2 2 2 कॉमन दिखा आपको, 2 मैंने बाहर निकाला है, 1 प्लस और माइनस आई रूट 3 बाय 2। दिस 2 विल गेट कैंसल, x इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस आई रूट 3। जैसा हमको पता चल गया कि x के दो वैल्यूज आ गए जो ये वाली इक्वेशन के रूट्स है, तो उन्हें फौरन बोला कि भाई मुझको आप अल्फा और बीटा से अलग अलग कर लो। तो हियर वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3, बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई रूट 3। प्लस और माइनस का मतलब दो अलग अलग रूट है। अब उसके बाद में क्या दे दिया, अल्फा पावर एन ले लो, फिर बीटा पावर एन ले लो। ये आंसर सॉल्व करके बता दीजिए। अल्फा इज इक्वल्स टू, नाउ अज्यूम, लेट, नाउ लिख लो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3। बेटे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है आपको, तो डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, आर के पास जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के पास हमारे 1 है, 1 स्क्वायर, वाई हमारे पास रूट 3 है, रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इक्वल्स टू 1 प्लस 3, आर इक्वल्स टू रूट 4, 4 का रूट क्या होता, 2 होता। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अभी हमने 7 मार्क का क्वेश्चन किया था, सेम उसमें भी ऐसे ही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 ऐसे ही रख लो, ये 2 को अंदर यहाँ भी जाइए और यहाँ भी जाइए, 1/2 प्लस आई रूट 3/2। अल्फा इज इक्वल टू 2, पहला वाला पार्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स का ही रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स में 1/2 कहाँ पर आता बेटे, कॉस में 1/2 कहाँ आता, 60 पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3। ओके, 1/2 60 डिग्री है कॉस में, रूट 3/2 60 डिग्री है साइन में। सर आई के पास हमेशा साइन क्यों लिख रहे हैं बेटा, वो इमेजिनरी पार्ट है, वाई एक्सिस का टर्म रहता है, इसीलिए हम उसको I2 लिखेंगे। अब अल्फा के साथ हमको क्या लगाना है, पावर एन लगाना है, तो यहाँ पर हमने पावर एन लगा दिया। अल्फा पावर एन 2 पावर एन इंटू कॉस एन पाई/3 प्लस आई साइन एन पाई/3। बेटा ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, यहाँ पावर एन, यहाँ पावर एन, फिर होल पावर एन लगाया, मैं डायरेक्ट पावर एन लगा दे के एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली में अब आप क्या करिए, बीटा पावर एन लगाइए, बीटा पावर एन में 2 पावर एन कॉस एन पाई/3 माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू माइनस में है, आई साइन एन पाई/3। अब दोनों को ऐड करने के लिए कहा है वो हमको, हियर वी हैव टू ऐड अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। नाउ अगेन LHS गिव्स यू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, तो क्या कर लें, दोनों में कॉमन है 2 पावर एन, 2 पावर एन को बाहर ले लेंगे, cos n पाई/3 प्लस आई साइन n पाई/3 प्लस ये वाला पार्ट तो बाहर है, इसको ऐड कर लो, cos n पाई/3 माइनस आई साइन n पाई/3, माइनस साइन के साथ प्लस साइन चले गया, 2 पावर n, 1 cos plus 1 cos, 2 cos is there, 2 cos n pi/3 is left here, bases are same, power should be added कर लो बेटे, ये हमने ऐड कर लिया है इसको, और ये हमारा given solution what we have to show in this one। चलो बाकी का बाद में देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज। ठहरो साहब, 1 मिनट रुक जाओ, मैं हट जाता हूँ, बच्चे हमारे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वाइंड अप कर दीजिए।